Hello everyone, how are you? I hope all of you are doing good and yes, all of you are preparing well also for CAT 2026. ठीक है? So I have brought up practice set number 20. Set number 20 discuss करेंगे आज, ठीक है? And it's a caselet based on quant based reasoning, ठीक है? And the story is based on what? It's based on a coaching institutes, right? So it's enrollment in a coaching institute, उसके ऊपर आपका story based, ठीक है? Okay, चलो let's move ahead. Yes, if anyone wants to know कि what all can I provide in DILR, आपको किस तरह का guidance मिलेगा and all, then you can pause the screen and you can have a look at it. ठीक है? Let's move to the set. So ये आपका set है. Again, I will advise कि pause the screen, try this set. So the time limit I will give you for this set is 10 minutes, not more than that. 10 मिनट के लिए सेट ट्राई करो, ठीक है? आफ्टर दैट यू कैन गो थ्रू द सोल्यूशन, उसके बाद सोल्यूशन आप रेफर कर सकते हो, ठीक है? चलो, सो यू ट्राई, पॉज द स्क्रीन एंड गिव इट अ ट्राई, ठीक है? वंस यू आर डन, प्रोसीड अहेड, ठीक है? सो व्हाट वी हैव, a reputed coaching institute for competitive exam preparation launched a new center in a busy educational hub of Bhubaneswar. Okay. Thanks to aggressive marketing and positive feedback, the institute saw a large number of enrollments in the very first year. From the second year onwards, many students began re-enrolling, choosing to continue their preparation for subsequent years. Fine. To motivate long-term dedication and reward consistent students, the institute introduced a loyalty-based discount scheme on course fees. A student who enrolled continuously for 4 years, ठीक है, तो continuously 4 साल के लिए अगर enroll है, तो he or she became eligible for a 30% discount on the course fee of the 4th year. ठीक है, तो continuously अगर 4 साल for example enrolled in this year and the 4th year, तो 4 years enrollment, तो 4th year में उसको 30% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? ओके, 5 consecutive years, so 35% discount on the course fee of the 5th year and so on, ठीक है? Then 6 straight years, 45% 6th year, then highest discount of 50% reserved for students who stayed with the institute for 7 year or more uninterrupted years, तो consecutive years होना चाहिए, ठीक है? However, no student availed the 50% discount as none continued for more than 6 consecutive years. Fine. Chalo, let's move ahead. The table provided gives the number of enrollments, new plus repeaters, for each of the first 8 years. For each of the first 8 years. ठीक है, okay. We have some conditions about re-enrollees. ठीक है, जो लोग सेकेंड टाइम एनरोल हो रहे हैं या थर्ड टाइम एनरोल हो रहे हैं, तो दोज आर री एडमिशन, गोइंग फॉर द री एडमिशन, तो उनके लिए कुछ कंडीशन यहाँ पे दिए हुए हैं. क्या कंडीशन है? 60% ऑफ फर्स्ट टाइम एनरोलीज इन एनी गिवन ईयर रिटर्न इन द इमीडिएट नेक्स्ट ईयर. ओके. 30% ऑफ फर्स्ट टाइम एनरोलीज कंटिन्यूड इनटू द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर. 15% ऑफ फर्स्ट टाइम एनरोलीज एनरोल्ड फॉर 4 straight years. 10% of first time enrollees studied continuously for 5 years and 5% of first time enrollees stayed for a 6-year streak, मतलब consecutive 6 years. It's important to note that students either rejoined in consecutive academic years or didn't return at all. ऐसा नहीं होगा कि ज्वाइन किए 2 साल का गैप ले लिए फिर वापस आ गए, ऐसा नहीं होगा, राइट? तो whoever is going to rejoin in consecutive years, ठीक है? No student took a break and then re-enrolled. सिनेरियो हमने पूरा पढ़ लिया, राइट? तो सिनेरियो हमने पूरा पढ़ लिया. आई थिंक वी ऑल अंडरस्टूड कि सिनेरियो क्या है. लेट्स क्विकली हैव ए लुक एट द क्वेश्चंस. हाउ मेनी न्यू एनरोलमेंट्स, ठीक है, इन विच ईयर मैक्सिमम, ऑल 8 years, ओके ओके. तो आई होप इट्स क्लियर कि क्या करना है हमें. वी हैव टू फाइंड आउट फॉर ऑल द 8 years हाउ मेनी न्यू एनरोलमेंट्स आर देयर, how many enrollments came from the previous year, how many enrollments came from the previous to previous year and so on. ठीक है, okay. Now what is the first क्या मतलब opinion about this set?
it's going to be too much of calculations, right? It's going to be lengthy. I have seen students those who will not attempt this set. Why? सर बहुत कैलकुलेशन है, बहुत लेंदी है, बहुत टाइम जाएगा। भैया इस टाइप का सेट जो है ना, ये पूरा मतलब बैठा बैठा है वाला सेट है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन मिस्टेक करे वो ही है। वाई आर यू गोइंग टू डू ए कैलकुलेशन मिस्टेक हियर? वाई डू यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू मेक ए सिली मिस्टेक हियर? जहां पे लॉजिक अप्लाई होता है, राइट, you have to analyze many things, logic is applied, there are chances that you might miss out something, but यहाँ पे straight forward calculation है। just solve it cautiously and don't make any silly mistakes। ये बैठा बैठा है आपके 5 क्वेश्चन, 5 into 3 15 मार्क्स आपके बैठा बैठा है, and you solve one set completely, you are straightway crossing 50% of the applicants। अब सीधा 50% एप्लीकेंट्स के ऊपर जाके बैठ जाते हो। इसके बाद और एक सेट डन 90% एप्लीकेंट्स के ऊपर, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन और 95% प्लस। दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी। गो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट लुक एट ए सेट जो कि बैठा बैठा आपको नंबर दे दे, गलती होने के चांसेस ना हो, राइट? चलो लेट्स मूव अहेड। तो व्हाट वी हैव बेसिकली नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स। ओके, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स, नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स, ठीक है। यहां पे एक डिस्काउंट का है एनरोलमेंट्स, यहां पे एक डिस्काउंट का है, ठीक है। सो 2 डिस्काउंट वाले क्वेश्चन है, 3 एनरोलमेंट वाले क्वेश्चन है। बट डिस्काउंट भी अप्लाई होगा तभी तो, ओनली व्हेन आई नो द नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स, या फिर कितने साल से वो कंसेक्यूटिवली ज्वाइन एनरोल कर रहे हैं। सो ऑल दोज इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो न्यू एनरोलमेंट फर्स्ट ईयर, हाउ मेनी? 120। okay, now from this 120, 60% will come back in the second year. That means here I will be having 72 enrollees or students, those who have enrolled in the previous year, they are repeating in the second year. थर्ड ईयर कितना रिपीट हो जाएंगे? 30% ऑफ द फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट। तो 120 था तो 30% हो जाएगा 36। उसके बाद 15% फॉर द फोर्थ ईयर, 120 का 15% हो जाएगा आपका 18। परसेंटेज शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। 10% फॉर द फिफ्थ ईयर हो जाएगा 12। 5% फॉर द सिक्स्थ ईयर हो जाएगा 6। क्लियर? डन। लेट्स मूव अहेड। नाउ फॉर द सेकेंड ईयर 72 केम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर लॉट, राइट। तो न्यू एनरोलीज कितने आएंगे सेकेंड ईयर में? न्यू एनरोलीज हो जाएंगे 200। सेम प्रोसेस, 60%, 120, 30%, 60, देन यू हैव 15%, राइट। 60, 30, 15, फिर वापस उसका आधा हो जाएगा। 60, 30, 15 मीन्स व्हाट? आधा होते जा रहा है 60, देन 50, उसका आधा 30, उसका आधा 15, तो उसका आधा आ जाएगा 30 यहां पे। देन यू हैव 10% एंड 5%। 10% इज 20 एंड 5% इज 10। डन, ठीक है। चलो कुछ लाइन खींच देते हैं यहां पे सो दैट दे डोंट गेट ओवरलैप, नहीं तो बहुत चांसेस। तो बेसिकली आई रियलाइज्ड कि ये ओवरलैपिंग होने के चांसेस हैं, तो चांस मैं नहीं लेना चाहता हूं। थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई वांट माय 15 मार्क्स इन टोटल। मुझे पूरे के पूरे 15 चाहिए यहाँ पे, कोई मिस्टेक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मिस्टेक होने का जो चांस लग रहा है उसको हटा दो। तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी मोर मिस्टेक्स नाउ, ठीक है। ओके, देन ये हो गया कौन सा? सेकेंड ईयर डन। कमिंग टू द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में ऑलरेडी 156 हमारे आ चुके हैं, राइट। सो ये 36 जो है, दिस 36 दे आर फ्रॉम दिस 120 जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे उनमें से, और ये जो 120 है यहाँ पे, दिस 120 इज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ठीक है। ओके, तो 156 गॉन, दैट मींस रिमेनिंग इज 240। सेम प्रोसेस, स्टार्ट द प्रोसेस। 60% कितना आ जाएगा? 144। 30% 72, 15% 36, right? 36. Then we have 10% and 5%. 10% will be 24 and 5% will be 12. ठीक है, ये हम
कैंसिल कर देते हैं। 7 यहाँ 7th और 8th ईयर में इस 120 में से कुछ आया नहीं है, राइट। सिमिलरली यहाँ आपका 7th ईयर हो जाएगा, ये इसमें भी ये 200 में से कोई नहीं आया है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। 4th ईयर, 4th ईयर आई ऑलरेडी हैव 144 प्लस 60, 204, 204 प्लस 18, 222, 222 ऑलरेडी आ चुका है। दैट मीन्स बाकी कितना बचा, 382 माइनस 222 विल बी हैविंग 160। तो 160 का 60%, 96, then 30%, 48, then 15%, 24, then you have 10%, 16, done, ठीक है। तो 4th ईयर इज ऑल्सो डन। देन 5th ईयर, 5th ईयर में कितने आ चुके हैं, 30 प्लस 12, 42, 42 प्लस 72, 42 प्लस 72 हो जाएगा 114, 114 प्लस 6, 120, 120 प्लस 90, 210। अच्छा 210 हो चुके हैं, मतलब बाकी बचा कितना, 300, 300 का 60%, 180, 30%, 90, then 15%, 15% will be 90 का आधा, 45, done, okay। then coming to the 6th year, 6, 26, 26, 36 is 62, 62 and 8, 70, 70 plus 40, 110, 110 plus 180, 290, 290 और यहाँ पे कितना, 470, मतलब बाकी कितना बचा, 180। तो 180, then here we will be having 60%, 60% will be 108 and 30%, 30% will be 54, okay, done, ठीक है। then we have 7th year, 10, 24, 24, 48, 58, 58, 90, 148, 148 and 108, 148 and 108, 256, 256 है कितना यहाँ पे, 606। अच्छा 256 प्लस 44 करते हैं तो 300, तो 300 में 306, ओके। सो 256 प्लस 44, 300, 300 में और 306, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी 350, 350। सो 350 ओवर हियर, 60%, 60% कितना हो जाएगा, 210, 60% विल बी 210, ठीक है। द लास्ट ईयर 657, 12 plus 6, 20, 12 plus 16, 28, 45 plus 28, 73, 73 plus 54, 127, 73 plus 54, that is 127, 210, 127, 337, तो 657 minus 337, 657 minus 337 will be 320। अच्छा जगह नहीं है तो ये जो लास्ट ईयर का जो न्यू एनरोलमेंट है मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। सो दैट विल बी 320, ये आपका लास्ट ईयर का न्यू एनरोलमेंट, कौन सा, 8th ईयर का, नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं 320 इज द न्यू नंबर ऑफ न्यू एनरोलमेंट्स ऑफ 8th ईयर, डन, ठीक है। सो आई थिंक वी आर ऑलरेडी डन। नाउ लेट्स क्विकली क्रॉस चेक आवर क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस हमने स्टार्टिंग में वैसे एक बार देख लिए थे, राइट। ऑलवेज रिमेंबर प्रोसेस इज दिस, इंस्ट्रक्शन, देन क्वेश्चंस, देन सॉल्यूशन, देन ओनली सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। चलो जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू एनरोलमेंट्स वेर देयर इन द 6th ईयर, 6th ईयर हाउ मेनी न्यू एनरोलमेंट्स, हाउ मेनी न्यू एनरोलमेंट्स, 180, तो पहला आंसर आपका 180, ठीक है, ओके। देन in which year there was maximum number of new enrollments, अच्छा let's quickly take 120, 200, 240, 160, 300, 180 and 350, तो which year we have the maximum number of new enrollments, 7th year, ठीक है। that means the institute is gradually growing and yes it's growing very fast। then considering all the 8 years total how many students received a discount of 35% in a year, अच्छा डिस्काउंट ऑफ 35% के लिए क्या कंडीशन था, 5th ईयर में मिलेगा ना, डिस्काउंट ऑफ 35% कहां, कौन सी ईयर में मिलेगा, 5th ईयर में मिलेगा, एंड वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दिस 8 years, ठीक है, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस 120, दिस 12, ओके, देन आउट ऑफ 200 दिस 20,
okay, then out of this 240, this 24, okay, and out of this 160 over here, ये 16. ठीक है, so these are the students. ठीक है, in these 8 years those who received डिस्काउंट ऑफ 35%, क्योंकि 35% का रिक्वायरमेंट क्या था, 5th ईयर में मिलेगा. 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स आप अगर एनरोल कर रहे हो तो 5th ईयर में आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा. तो वी जस्ट फाउंड आउट कि 5 इयर्स के सिनेरियो में कौन कितने कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं. ठीक है, तो आउट ऑफ 120 12, आउट ऑफ 200 20, आउट ऑफ 240 24, आउट ऑफ 160 16. ठीक है, नाउ सी समवन माइट हैव अ डाउट कि सर ये जो 300 है इसमें से भी कुछ तो निकलेंगे. हाँ निकलेंगे, बट वो हमारे इस 8 साल में नहीं है. तो क्वेश्चन इज अबाउट ओनली दिस 8 इयर्स. ठीक है, सो कितना हो जाएगा आंसर, 12 20 32, 32 प्लस 24, 32 प्लस 24 56, 56 प्लस 16, 56 प्लस 16 विल बी 72. तो 72 हमारा आंसर है यहाँ पे. ठीक है, फ्रॉम अमंग द न्यू एनरोलमेंट्स ऑफ द फर्स्ट 5 years, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नेवर रिटर्न टू द इंस्टीट्यूट. अच्छा, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कभी रिटर्न ही नहीं किए, those who never return to the institute. Okay, now if you observe, can I say out of these 120 72 returned, then ये जो 36 है they are from this 72, because we have discussed at the very beginning that no student took a break and then re-enrolled. तो ये जो थर्ड ईयर के 36 है इसी 72 में से ही है. तो कैन आई से कि ये जो 120 में से ओनली 72 रिटर्न एंड आफ्टर दैट द फॉलोइंग आर फ्रॉम द ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर्स. सो सीधा मैं अगर बोलूं कि आउट ऑफ दिस 120 हाउ मेनी डिड नॉट रिटर्न, तो 120 माइनस 72 डिड नॉट रिटर्न. देन आउट ऑफ 200 हाउ मेनी डिड नॉट रिटर्न, 200 माइनस 120 डिड नॉट रिटर्न. ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड. तो 120 माइनस 72 कितना आ जाएगा, 120 minus 72 will be 48. 48 did not return. Then second year 200. 200 में से 120 गया तो बचा कितना, 80 did not return. 240 में से 144. अच्छा, मतलब 56 and 40, 96 did not return. We are focusing on the first 5 years. ठीक है. Then 160 में से 96, मतलब 64 did not return. Then 300 में से 180. That means 120 did not return. Done. Let's add them up. 40 80 120 120 90, 210 210 60, 270 270 270 370 370 390. ठीक है, 390 46 कितना हो गया, 400 400 और यहाँ पे ये 8, 408 का सिनेरियो आ रहा है. एक बार वापस से देख लेते हैं. लेट्स डू द कैलकुलेशन अगेन. आई डोंट वांट एनी सिली मिस्टेक, आई वांट द एंटायर 15 मार्क्स. 40 plus 80, 120, 120 plus 90, 210, 210 plus 60, 270, 270 plus 120, 390, 390, 6 and 4, 400, 8, 408. तो आंसर विल बी none of this. ठीक है, ओके. देन if the course fee before discount in each of the years was rupees 40,000. अच्छा, ओरिजिनल मतलब इन original course fee is 40,000, right, without any discount. ठीक है, then what would be the total discount a student who continued with the institute for straight 6 years would get in this 6 years altogether. अच्छा, तो अगर एक स्टूडेंट कंटिन्यूसली 6 साल के लिए आ रहा है तो टोटल डिस्काउंट उसको कितना मिलेगा, टोटल डिस्काउंट उसको कितना मिल सकता है. ठीक है, चलो देखते हैं. सो a student will start getting discount only from the 4th year. 4th year कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 30%, that is 12,000. ठीक है, then 5th year कितना मिल जाएगा, 35%. 35% of 40,000 will be 14,000. ठीक है, and for the 6th year it's 45,000. तो 45% 45% of 40,000 कितना हो जाएगा, 18,000. ठीक है, तो टोटल डिस्काउंट कितना बन गया, 12 और 18 30, 30 और 14 44,000. तो टोटल डिस्काउंट दैट द स्टूडेंट वुड बी रिसीविंग इन दिस 6 years विल बी 44,000. ठीक है, तो सी द
मतलब कैलकुलेशंस हैं, बट बी केयरफुल and do the calculations properly. And for these kind of sets you have to have your percentage strong, very strong calculation of percentage should be very strong. ठीक है, नॉट ओनली दिस, आप कैट की तैयारी कर रहे हो मतलब परसेंटेज एवरेज रेशियो, ये तीन चीजें ना आपको मतलब यू शुड बी प्लेइंग विद देम. If you are not playing with percentage average and ratio, if you are scared of them, then sorry, you have to again मतलब think about cat. परसेंटेज एवरेज रेशियो, इसके बिना कैट नहीं है. ठीक है, ओके. सो आवर सेट इज डन. एंड यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. If you like the video, do like it and subscribe the channel. Share with your friends also. And for specific guidance, if you need one-to-one or if you need a group session, ठीक है, you can contact me. ठीक है, you can contact me at this number. And yes, I have experience of how many years? 13 plus years. ठीक है, so I didn't update in my earlier videos. टोटल सो 13, अराउंड 13 ईयर्स. 2013 से मैंने स्टार्ट किया. आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 2013, सो आई थिंक इट्स 12 प्लस ईयर्स. यस, अराउंड 12 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, ओके, चलो, टेक केयर, हैव ए गुड डे, थैंक यू.